Students, this is the 11th lecture of chapter surface chemistry, and in this chapter we will study about coagulation value, flocculation value, or you can say precipitation value. So before we start the topic, just see out what is the meaning of coagulation. This is simply the revision so that हमारा topic अच्छी तरह से हमें clear हो सके. So coagulation was simply the conversion of colloidal solution into the precipitates, and for this we need electrolyte. कन्वर्ट करने के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में वी नीड एन इलेक्ट्रोलाइट. सो हाउ मच इलेक्ट्रोलाइट वी नीड इज समथिंग दैट वी विल कैलकुलेट इन कोएगुलेशन वैल्यू, फ्लॉकुलेशन वैल्यू और प्रेसिपिटेशन वैल्यू. सो जस्ट सी आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CV, कोएगुलेशन वैल्यू, और फ्लॉकुलेशन वैल्यू, और PV, precipitation value. Just listen student, it is simply the, suppose I am having 1 liter colloidal solution. So to convert 1 liter colloidal solution into the precipitate, I need electrolyte. So the electrolyte I need in, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्वांटिटी इन्होंने रेफर करी है क्योंकि अपनी मर्जी से हम क्वांटिटी नहीं दे सकते हैं. द क्वांटिटी दैट आई नीड इन मिलीमोल्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हाउ मच मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड टू कन्वर्ट और टू कोएगुलेट 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. मींस 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को आपको कोएगुलेट करना है. क्या करना है आपको? यू हैव टू कोएगुलेट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एंड फॉर दैट इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स इज सेड टू बी द coagulating value, flocculating value, or you can say precipitation value. So it is the millimoles of electrolytes needed to coagulate 1 liter of colloidal solution. So for this first we'll write the formula so that it will be clear for us. The formula that we will need is flocculating value is, or you can say coagulating value or precipitation value. The formula is moles of electrolyte upon volume of colloidal solution into 10 raised to the power 6. इस फॉर्मूले पे आपको वर्कआउट करना है. सो अभी न्यूमेरिकल करेंगे, बट बिफोर द न्यूमेरिकल वी हैव टू डू सम स्मॉल टर्म्स. सो फॉर्मूला बेटा मैं यहाँ ऑन द अपर साइड नोट कर देता हूँ. दैट इज फॉर अस, फॉर्मूला इज दिस वन. फॉर द फॉर्मूला फॉर दिस सिंपली मोल्स ऑफ electrolyte upon volume of colloidal solution into 10 raised to the power 6. But before it we have to understand two things. The first thing that I will discuss is simply the coagulating ion, or also said to be the flocculating ion. So just see the student, suppose this is our colloidal solution which contain negatively charged colloidal particles. These are negatively charged colloidal particles. To coagulate we will add electrolyte AB. What we will add? We will add an electrolyte AB, और पर्टिकुलर लेके चलते हैं. चलिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा. We will add NaCl. Now this NaCl contains Na positive and Cl negative. Now to न्यूट्रलाइज द नेगेटिव आयन हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? पॉजिटिव आयन की. Cl नेगेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है. वी नीड Na पॉजिटिव आयन. सो दिस Na पॉजिटिव आयन इज सेड टू बी द कोएगुलेटिंग आयन. दैट इज द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज ऑन colloidal particles. Okay, now next thing is coagulating power or flocculating power. Coagulating power or simply
floculating power. So what is this simply is coagulating power? Just simply better understand, suppose this is the colloidal solution. To coagulate this we need electrolyte. So it is the ability of electrolyte to convert colloidal solution into the coagulate means to convert the colloidal solution into the precipitate. Means आपके इलेक्ट्रोलाइट की एबिलिटी है कि वो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कर सके, कोएगुलेट कर सके, और यू कैन से उसको कन्वर्ट कर सके किसमें, प्रेसिपिटेट में. सो दिस आई विल राइट, इट इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कोएगुलेट द given quantity of colloidal solution. So these two things we have done. Now the next is relation between coagulation value and coagulation power. सो बेटा द रिलेशन मैं आपको पहले बताया था, कोएगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर. क्योंकि व्हाट इज दिस, सिंपली अंडरस्टैंड कोएगुलेशन वैल्यू क्या है, इट इज द यू कैन से मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कोएगुलेट. कोएगुलेट करने के लिए जितने आपको इलेक्ट्रोलाइट का मिलीमोल्स में नीडेड है, दैट इज द कोएगुलेशन वैल्यू. एंड कोएगुलेटिंग पावर, इट्स द एबिलिटी टू कोएगुलेट कोलाइडल सॉल्यूशन. तो सिंपल सा लॉजिक देखिए बेटा, मैं आपको एक से समझा रहा हूं. सपोज आई एम हैविंग द टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी. ओके, द इलेक्ट्रोलाइट ए, इट इज रिक्वायर्ड 10 ml टू कोएगुलेट 1 liter of colloidal solution. And electrolyte B, we require 20 ml to coagulate 1 liter colloidal solution. अब ये देखिए, दोनों को 1 liter colloidal solution को कोएगुलेट करना है. ये कितना लग रहा है 10 ml, ये कितना लग रहा है 20 ml. तो जो कम लग रहा है इट मीन्स इट इज मोर एफिशिएंट और इट विल हैव द मोर पावर. ये ज़्यादा लग रहा है इट मीन्स इट इज लेस एफिशिएंट. सो ऑन दैट बेसिस व्हाट वी कैन से कि जितनी कोएगुलेशन वैल्यू कम होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होगी. क्योंकि कम लगेगा इट मीन्स पावर इज मोर, ज़्यादा लगेगा इट मीन्स पावर इज लेस. सो कोएगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर. नाउ विल शिफ्ट टू द न्यूमेरिकल्स. फॉर द न्यूमेरिकल्स बेटा हमने फॉर्मूले लिख रखे हैं यहाँ पे. द न्यूमेरिकल्स आर, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज 5 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल्ड. ये जो आपका आर्सेनिक सल्फाइड है, इट इज हाउ मच 5 ml. इट इज मिक्सड विद डिस्टिल्ड वाटर प्लस वाटर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है. एंड 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए बी प्लस इसमें आपने ऐड किया 0.1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट ए बी. सो दैट टोटल वॉल्यूम इज 10 ml. मीन्स अब इस कंप्लीट की जो वॉल्यूम होगी दैट इज 10 ml. दिस इज नाउ total volume is 10 ml. Clear? And it was found that the solution containing 4.6 ml of electrolyte coagulate within 5 minutes. It means AB required for coagulation how much ml? 4.6 ml. I have to calculate flocculation value. The formula is already written. नाउ इस फॉर्मूले में बेटा 2 थिंग्स यू रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. कितने इलेक्ट्रोलाइट्स के मोल्स हैं, किसके लिए, नीडेड फॉर कोएगुलेशन. इसको मैं और क्लियर कर देता हूं. मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नीडेड फॉर कोएगुलेशन इनटू 10⁻⁶. सो हमें मोल्स तो नहीं गिवन है, बट हमें गिवन क्या है, ए बी का वॉल्यूम गिवन है और उसकी मोलैरिटी गिवन है. सो व्हाट आई simply just see out, molarity of AB is 0.1 molar and volume of AB solution is 4.6 ml. तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे बेटा. सो वी नो दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम.
सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वॉल्यूम लीटर्स में जाएगी। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर सॉल्यूशन आल्सो कि व्हेनेवर 1000 इज नॉट गिवन वॉल्यूम इज इन लीटर्स। सो मोलैरिटी इज 0.1 इनटू वॉल्यूम इज 4.6 ml। अब हमें कन्वर्ट किस में करना है इसको, लीटर में। सो यहीं पर हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। सो बेटा डेसिमल को रिमूव कीजिए, 100 और आएगा, एंड दिस इज 46 इंटू 10⁻⁵ मोल्स। सो हमारे मोल्स आ गए बेटा 46 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन दिस आर्सेनिक सल्फाइड। ये पूरा जो है 10 ml है, यहां पर भी मेंशन कर दीजिए दिस इज रिक्वायर्ड इन ml इंटू 10⁻⁶। सो बेटा ये 10 की पावर ऊपर जाके -1 होगी, 46 इंटू 10⁻⁵, 10⁻⁶, 10⁻⁻1। सो your flocculation value comes out to be 46. Clear? Now we'll shift to the question number 2. Question number 2 is 5 ml of silver iodide is mixed with distilled water. Your colloidal solution is silver iodide 5 ml। बेटा इसको मिक्स किया है वाटर के साथ, डिस्पर्जन मीडियम प्लस and 0.1 molar NaCl solution. They have added 0.1 molar NaCl solution so that the volume is 10 ml. Again just like the previous numerical. Volume कितनी होगी बेटा 10 ml. It was found that solution containing more than 4.9 ml NaCl coagulates. यानी coagulation के लिए NaCl कितना है? NaCl required for coagulation is, they have given 4.9 ml. Again I have to calculate flocculation value. तो formula written है, formula we need moles of electrolyte needed for coagulation. So electrolyte है हमारा NaCl. So NaCl का क्या given है बेटा? Volume is given and molarity of NaCl is 0.1 molar. So we know that molarity is equal to number of moles upon volume. So number of moles is equal to molarity into volume. So molarity is 0.1 and volume is 4.9 ml divided by 1000 milliliter लीटर में हो जाएगा. Remove these decimals into 100. 49 into 10⁻⁻5 moles. Okay. So moles आ गए हमारे पास, पुट कीजिए 49 into 10⁻⁵ upon volume of colloidal solution is 10 इंटू 10⁶. नाउ बेटा ये 10 ऊपर जाके -1 होगा, सो 49 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁻1. सो दिस कम्स आउट टू बी 49. सो द कोएगुलेशन वैल्यू और फ्लॉकुलेशन वैल्यू इज 49. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्लॉकुलेशन वैल्यू. द न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 3. ही सेज द फ्लॉकुलेशन वैल्यू फॉर जिंक क्लोराइड this is 0.68 and your colloidal solution is arsenic sulfite. Flocculation value of zinc chloride for arsenic sulfite solely is 0.68. How many milliliters of 0.24 molar ZnCl2? You have to calculate volume in ml of ZnCl2, means volume of electrolyte solution. And molarity of ZnCl2 solution is given to you 0.24 molar will be sufficient to coagulate 300 ml solution. So volume of colloidal solution arsenic sulfide is 300 ml. So simple सा लॉजिक है बेटा, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन आर्सेनिक सल्फाइड 300 ml, इसको कोएगुलेट करने के लिए यू हैव टू ऐड ZnCl2. सो कितना ml आप ZnCl2 ऐड करोगे दैट यू हैव टू फाइंड आउट. और हिंट क्या है हमारे पास, वी आर हैविंग द हिंट, हमें फ्लॉकुलेशन वैल्यू गिवन है. सो वहीं से स्टार्ट करते हैं फ्लॉकुलेशन वैल्यू से. FV इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ZnCl2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶. समथिंग यहीं से वी गॉट आवर आंसर.
So flocculation value is 0.68. मोल्स ऑफ ZnCl तो हम कैलकुलेट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ कॉलाइडल सॉल्यूशन 300 ml इंटू 10⁶. सो बेटा मोल्स ऑफ ZnCl2 इज इक्वल टू 0.68 इंटू 300 अपॉन 10⁶. डेसिमल रिमूव कीजिए 10⁻². क्लियर टू ऑल ऑफ यू. 2 से ये कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 3 8 24, 2 3 6 18 19 20 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स. तो मोल्स आ गए बेटा हमारे. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम. सो जस्ट सी आउट मोलैरिटी. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. क्लियर. सो मोलैरिटी कितना है बेटा, 0.24. नंबर ऑफ मोल्स 204 इंटू 10⁻6 अपॉन वॉल्यूम. यहाँ से जो आपकी ZnCl2 की वॉल्यूम आएगी वो आएगी लीटर्स में. किस में आएगी, लीटर्स में. सो पहले लीटर में ही कैलकुलेट करते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ ZnCl2 इन लीटर कम्स आउट टू बी 204 10⁻⁻6 अपॉन 0.24. नाउ अब ये किस में आई बेटा, दिस इज इन लीटर. टू कन्वर्ट इनटू ml, we have to multiply it by 10⁻3, and when you solve all the calculation this comes out to be 0.85 ml. So beta this is all about the article, that is coagulation value, flocculation value, precipitation value and the related numericals. That's all.